हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। आवाज़ आ रही है सब नू? आई होप इट इज़ ऑडिबल टू एवरीवन। ਅੱਜ जो क्लास ਆਪਾਂ शुरू ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड एंड ओरिएंटेड टूवर्ड्स पंजाब ਦੇ करंट अफेयर। नॉट ओनली पंजाब ਦੇ करंट अफेयर बट ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਵੈਂਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਰੈਂਡ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਜੇ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਈਵੈਂਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕ ਸਕਣ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਲਾਸਿਸ ਲਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪਲੱਸ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 250-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 19 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਮਿੰਗ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I totally agree with that। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਿਊਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲੂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਕੈਨ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਅਸ। ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਲੂਕਾ ਆਈਐਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜਾਤਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਫॉर ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਚਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 15 ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 14-15 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਬੈਚਸ ਹੈ
बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके नाल तुहानूं करवाया जाऊगा। एंड आई वुड से इट इज़ मलूका IAS इज़ अ 1 पॉइंट सोल्यूशन टू योर UPSC एस्पिरेशन, UPSC डिमांड्स किस तरीके नाल तुसीं तैयारी करनी है। एंड नॉट ओनली दिस, जे तुसीं PCS बारे सोच रहे हैं तो मतलब तुहाडे दिमाग दे विच एक ही इंस्टीट्यूट होना चाहिए, दैट इज़ मलूका IAS। दैट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन टू योर सक्सेस फॉर बिकमिंग एन PCS ऑफिसर। इस नाल ही आपां करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर की जो आप गल करते हैं, एक सरकार वालों स्कीम चलाई गई सी 2010 दे विच, 2010 दे विच नो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की एक स्कीम चलाई गई थी। अब स्कीम की सीगी कि फॉर एग्जांपल अपन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है, कंपोनेंट है, कंपैरेटिवली की है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, दैट सब्सिडी वुड बेसिकली बी गिवन ऑन न्यूट्रिएंट। उन्होंने न्यूट्रिएंट के कंपोजिशन फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर के लिए तो सब्सिडी प्रोवाइड की जाऊगी टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के लिए सब्सिडी की स्कीम 2010 के उत्ते आएगी। सब्सिडी कादे कादे लिए मिलेगी, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ली, फॉस्फेट ली, पोटाश के लिए, सल्फर ली ते सल्फर ली, दैट इज कंटेन इन नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के इस स्कीम के कंटैक्स के जो आप गल करते हैं कि नॉन यूरिया, ध्यान रखियो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर से ये होगा। नैक्सट इज ये हो रही नहीं, ये न्यूज़ के क्यों सी, बिकॉज रीसेंटली 51,875 करोड़ सब्सिडी फॉर फॉस्फेट एंड पोटाश बेस्ड फर्टिलाइजर फॉर द करंट रबी सीजन लिए फॉर एग्जांपल दी गई है, जिहड़ा आपां नूं ध्यान दे विच एक अमाउंट है। अमाउंट पुछण दे चांसेस एक डायरैक्टली तुहानूं ये चांसेस नहीं होणगे कि तुहानूं की कितनी अमाउंट दी गई है। एक की पूछा जा सकता 50,000 करोड़ के लगभग फॉर एग्जांपल रबी सीजन के लिए फॉर एग्जांपल आपां नूं ये मिलिया। पहली गल ये स्कीम की है, स्कीम है एक स्कीम 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार वालों न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किया गया, जिहदे न्यूट्रिएंट्स के लिए फॉर एग्जांपल आपको सब्सिडी दी जाऊगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ लिंक टू द न्यूट्रिएंट कंपटीशन, न्यूट्रिएंट के कंपटीशन नाल लिंक है, बाय प्रोडक्ट नाल लिंक नहीं हैगी। जो न्यूट्रिएंट का कंपटीशन है जिसनों मिलके बनया उसनों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर इन्हां दे कंपटीशन ते है, प्रोडक्ट के उत्ते सब्सिडी, ये हमेशा ध्यान दे विच रखियो। नॉट ओनली दिस, स्कीम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है 2010 तो जो स्कीम फॉर एग्जांपल चली जा रही है, इन स्कीम में इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर से है। मैं तुहानूं दस्सिया है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन रैदर दैन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनूगा उस दे उत्ते नहीं, न्यूट्रिएंट जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन किस तरीके नाल उन्हां विच किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स है उन्हां दे बेसिस दे उत्ते एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाऊगी। एक होर चीज़ है नाम PM प्रणाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, श्रीकाल एवरीवन। PM प्रणाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही है, इट इज बेसिकली इसका फुल फॉर्म की बनती है, प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना कि ऑल्टरनेट आप स्कीम तो की कर सकते हैं कि आप प्रमोट करना है, की प्रमोट करना है ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स सो दैट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कुड बेसिकली बी डन। ऑल्टरनेट का मतलब की होया, ऑब्जेक्टिव है इज टू रिड्यूस द ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या ओवरऑल कंजम्पशन आप किवें करांगे, आप स्टेट टू इंसेंटिवाइज करांगे, स्टेट्स फॉर एग्जांपल इंसेंटिवाइज करांगे किस तरीके नाल, प्रोत्साहित करांगे किस तरीके नाल, ताकि वो फॉर एग्जांपल इट कुड बी इन अ पोजीशन टू यूज फॉर एग्जांपल सब्सिडी इन अ कंपैरेटिवली बेटर वे टू रिड्यूस ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, और फॉर एग्जांपल सब्सिडी ओवरऑल ऑटोमेटिकली कम हो जाऊगा, घट जाऊगी। इस तरीके नाल ये इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। हुण जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आप की कह रहे हैं, एक सब्सिडी दी जाऊगी जेडे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स के उत्ते होगी, 2020 की सरकार की स्कीम है, कंपोजिशन के उत्ते होगा तो फाइनल प्रोडक्ट के उत्ते नहीं। कौन ये इंप्लीमेंट करता है, वे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर। कदों की स्कीम है, 2010 की स्कीम है। इस दे नाल ही फॉर एग्जांपल PM प्रणाम आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके नाल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर घटानी है, उसनूं घटाउण दे लई काहदी दी स्कीम है फॉर एग्जांपल, ताकि आप स्टेट्स नूं इंसेंटिवाइज करांगे, प्रोत्साहित करांगे। इसलिए आप इस टॉपिक दे विच 2 स्कीम्स कंटिन्यूअसली हो गया। जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, आह जिहा क्वेश्चन ना सीधा ही आ जाता हुंदा है डायरैक्टली,
ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच, ट्विन परिवर्तन की फॉर एग्जाम्पल पहुँच, आप ट्रांजिशन करना है मतलब बदलाव लैके आना, मतलब परिवर्तन लैके आना। ट्विन का मतलब दो चीज़ों को आप इकट्ठा मिला के चलाना पऊगा, ये दो चीज़ों को इकट्ठा मिला के इस तरीके नाल चलाना ताकि कोई ना कोई नवा एक परिवर्तन एक वधिया तरीके नाल आवे। हुण ये किस चीज़ दे विच गल कीती जा रही है, पहली गल तां टर्म आई कित्थों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, डायरैक्टली सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टर्म आई कित्थों, इट इज़ बेसिकली ए टर्म किहने बनाई, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने यह टर्म को क्वाइन किया कि इंट्रोड्यूस्ड बाई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। की है ये कहा जाएगा कि डिजिटाइजेशन की रोल प्ले करूगा, आप जी ग्रोथ है सस्टेनेबल करनी चाहते ताकि कॉन्टीन्यूसली चलती रहे, उस जे ग्रोथ को आप सस्टेनेबल करना है तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की कहता है तुसी नाल नाल डिजिटाइजेशन भी कर लैके आओ। डिजिटाइजेशन की भूमिका को बहुत ज़्यादा महानता देने की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने किया है। जे आप सस्टेनेबल कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ के जाना है, अपन डिजिटाइजेशन की तरफ कंपैरेटिवली इन्होंने दोनों को क्लब करके चलना पू, तो कोई की बनता है ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच। ये की कहते हैं, इट विल बी रिड्यूसिंग द ग्लोबल एमिशन बाई 20%, ग्लोबल निकास फॉर एग्जाम्पल डिजिटल हल के नाल की होगा 20% तक जो अलग अलग रसायन गैसा का एमिशन हो रहा वो घट हो जू, सिर्फ एक बैटर प्रोसैस के आते हुए एक डिजिटाइजेशन। तो तुहाडे लई की क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल जिहा क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच की टर्म किहने दिती है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने। की कहते हैं जे आप सस्टेनेबल ग्रोथ लैके आनी आप डिजिटाइजेशन वाल मूव करिए। तीजा जे आप मूव करते हैं तो नाल की है 20% ग्लोबल एमिशन कंपैरेटिवली घट जाऊगा। एक सिंपल तरीके नाल तुहानूं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट जिहड़ा आप टॉपिक कवर करन लगे हैं दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग नैविगेशन सिस्टम। ये एक सिंपल जिहा है कि चाइना का फॉर एग्जाम्पल आप बेडो आऊगा, चाइना ने आपका प्रपोजल पुट फॉरवर्ड किया, आपको यह क्वेश्चन मैट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि किहड़े कंट्री का किहड़ा फॉर एग्जाम्पल नैविगेशन सिस्टम यूज़ करते, आपको एक मैट के फॉलोइंग जिवें टेबल के फॉर्मेट के दोनों पासे आ रहा, भारत का किहड़ा, चीन का किहड़ा, फॉर एग्जाम्पल यूरोपीयन संघ का किहड़ा, रूस का किहड़ा, अमेरिका का किहड़ा, जापान का किहड़ा, आपको एक टेबल फॉर्मेट के पूछा जाऊगा कि मैच करो फॉर एग्जाम्पल, या पूछा जा सकता कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किहड़ा करैक्टली मैच है या किहड़ा फॉर एग्जाम्पल इनकरैक्टली मैच है। आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS किहदा US का, ग्लोनेस ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किहड़ी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल रूस का, रशिया का है, गैलीलियो किन्ना दा, फॉर एग्जाम्पल यूरोपीयन यूनियन यूरोपीयन संघ का है, बेडो या कॉम्पास फॉर एग्जाम्पल किन्ना दा, चाइना वाले का, IRNSS किन्ना दा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का, तो QZSS क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल किहड़ी कंट्री ने दिता गया, इट इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड बाय जापान। ये आपको मैच की फॉलोइंग के पूछा जा सकता है कि किहड़ी कंट्री फॉर एग्जाम्पल किहड़ा सिस्टम एक पर्टिकुलरली सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरैक्टली ईजी है। नोट्स के बेडू सिस्टम के बारे फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन जो चाइना का है। नैक्सट विक्रम S, इट इज़ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। हुण एक रॉकेट है बेसिकली इट इज़ अ सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल ये एक रॉकेट है ना। वॉट ये बनाया कि नहीं है, ये पहले न्यूज़ के विच क्यों है, इट इज़ अ फर्स्ट जो कंपैरेटिवली डेवलप किया गया एक स्टार्टअप के वालों। स्टार्टअप का की नाम है स्काई रूट एरोस्पेस एंड इज ऑल सेट फॉर लॉन्च अंडर इट्स मिशन प्रारंभ बाई अ स्काई रूट एरोस्पेस। पहला स्काई रूट एरोस्पेस फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फॉर एग्जाम्पल इंडिया का रॉकेट हैगा, तो उसके नाल निजी तौर के उत्ते डेवलप होया, किस कंपनी ने डेवलप किया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायरैक्टली पूछा जा सकता है इट इज़ डेवलप्ड बाई अ स्काई रूट एरोस्पेस जो एक फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी है। की करूँगा, इट इज़ इंडिया द सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एग्जाम्पल किया जाऊगा। सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स ये किहड़ियां हुंदियां are those vehicles which are traveling slower than the orbital velocity. Orbital velocity for example which means the speed is fast enough to reach the outer space। ਇੰਨੀ speed ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ for example outer space ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ
पर इन्नी भी नहीं होंगी, बट नॉट एज फास्ट इनफ टू स्टे विद इन द ऑर्बिट अराउंड अर्थ की अर्थ के ऑर्बिट अराउंड ही ऑर्बिट होंदा रहे, इन्नी नहीं होंगी पर इन्नी कि डेफिनेटली हो जाती है कि इट कुड गो इनटू द आउटर स्पेस। उसके कंटैक्स दे विच एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स ऑर्बिटल नूं विच लॉन्च करने एक व्हीकल है दैट इज बेसिकली बी डेवलप्ड बाई अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी का नाम कंपैरेटिवली एरोस्पेस फॉर एग्जाम्पल स्काई रूट एरोस्पेस है, वो तो पता होना चाहिए कि डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। नैक्सट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स कंटैक्स, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्री का। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ है कि इंडिया ने रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड, पहले पुराने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके अपने को ऋतुराज अवस्थी, किन्नवे बने हैं 22nd लॉ कमीशनर बने हैं। लॉ इस तो पहला 21st फॉर एग्जाम्पल लॉ कमीशन जो बनाए गए दैट वाज बेसिकली इन न्यूज़ बिकॉज उन्होंने न्यूज़ करके क्यों सी बिकॉज फॉर यूनीफॉर्म सिविल कोड है, उन्होंने कहा था यूनीफॉर्म सिविल कोड का हजे टाइम नहीं आया है, हजे इंप्लीमेंट करने की ना तो जरूरत है और ना ही फॉर एग्जाम्पल हजे टाइम आया। इसी मुद्दे के उत्ते जो 22nd लॉ कमीशन ऋतुराज अवस्थी के फॉर एग्जाम्पल अंडर बनाया, इस कंटैक्ट के आप अगे मूव करेंगे। नॉट ओनली दिस, ये लॉ कमीशन के बारे फॉर एग्जाम्पल जो आप पढ़ते हैं ये संवैधानिक बॉडी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज़ बेसिकली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अलग अलग टाइम के उत्ते जो सरकार को लोड़ है उन्होंने रिकमेंडेशंस के उत्ते इस लॉ कमीशन को बनाया जाऊगा। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ नहीं ਕੰਮ करना, ऑल दीज थिंग्स वुड बेसिकली भी वो पॉइंट्स पॉइंट ऑफ रैफरेंस कि तुसी इस दायरे दे विच रह के काम करना है। एक कॉन्टीन्यूसली फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टाइम के उत्ते पॉइंट किया जा रहा है, लॉ के मुताबिक बनना नहीं, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जदों जरूरत है सरकार फॉर एग्जाम्पल उदों कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी। इज इट दिस मच क्लीयर टू एवरीवन? आपको 22nd का कंपैरेटिवली नाम पता होना चाहिए है। This is the topic for example 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसनों प्री ते मीनस दोनों परस्पेक्टिव से यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं डू शेयर these classes with your friends। जो मनुका इस यूट्यूब चैनल पर मैं लूँगा या PCS के लिए मेरे होर जोड़े साडे कोलीग आ वो लैणगे, उन्होंने कीप ऑन शेयरिंग these classes ताकि उन्होंने बेनिफिट मिले। हाँ यस, ओरिएंटेशन क्लास विल बी हेल्ड टुमारो, वो कल होगी। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि ते रीसेंटली न्यूज़ दे विच क्यों सी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कहती है, कहती है 10% रिजर्वेशन देनी है, किन्ना नूं देनी है, जेडे इकनॉमिकली वीकर सैक्शन है। एक तो हो गया फॉर एग्जाम्पल SC कैटेगरी होगी, ST कैटेगरी होगी, OBC कैटेगरी होगी, फॉर एग्जाम्पल MBC कैटेगरी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, या अलग अलग कैटेगरीज होगी। हुण जदों कमीशन सैटअप पहला किया गया सीगा, उन्होंने की किया सी मैक्सीमम 50% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं कि 50% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो बाकी 50% फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के लिए वो रखा जाऊगा। दिस वाज वन आइडिया जो पुट फॉरवर्ड किया गया सी फर्स्टली। सैकेंडली हुण जे इन्हां कैटेगरीज दे विच इकनॉमिकली वीकर सैक्शन बारे कुछ मैंशन नहीं सी, जिवें जनरल कैटेगरी के लोग हो सकते हैं और रिजर्वेशन दे विच नहीं आउंदे, पर पैसे तौर पर बहुत ज़्यादा पछड़े हुए हैं, इकनॉमिकली काफ़ी वीक है। हुण जनरल कैटेगरी दे विच भी है, इकनॉमिकली भी वीक है, उन्होंने बेनिफिट नहीं मिल रहा सी, इस करके 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई कि 10% आप रिजर्वेशन देनी है। कादे विच रिजर्वेशन देनी है, इट सेड दैट 10% रिजर्वेशन देनी है फॉर एग्जाम्पल अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दे विच इंपॉर्टेंट है, पर इहो जिहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिहड़े माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं होने चाहिए। अदर दैन दैट उन्होंने भी आप 10% एजुकेशन इंस्टीट्यूट से देनी है, प्लस नॉट ओनली दिस सैकेंड इज कि 10% एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाल ही पब्लिक इंप्लॉयमेंट के भी, तो दोनों गल्लां हो गई, एजुकेशन वाला भी हो गया तो पब्लिक इंप्लॉयमेंट के हो गए, तो 10% रिजर्वेशन मिलूगी। अगर जे रिजर्वेशन देनी है जो पहला क्लॉज नहीं सी, इस करके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स के अमेंडमेंट की गई सी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 तो क्लॉज 5, आर्टिकल 16 के फॉर एग्जाम्पल क्लॉज 4 के अमेंडमेंट की गई, तो नवा आर्टिकल 15(6) भी ऐड किया गया। क्यों? उत्थे इकनॉमिकली वीकर सैक्शन के बारे पहला कुछ मैंशन नहीं सी, तो हुण कंपैरेटिवली वो मैंशन करना पै गया।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਜੱਜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 5 ਜੱਜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, 3 ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, 2 ਜੱਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ 3:2 ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 5 ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 4 ਤੇ 16 ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ including the private institution whether aided or unaided by the state, ਉਦੋਂ state ਤੋਂ benefit ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, other than the minority education institutions refer to clause 1 of the article 30। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜੌਬ। 16 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2-3 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SR ਸਿਨਹਾ ਜਾਂ ਸਿਨਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਆਫ ਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਆਲਦੋ ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ 27% OBC ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੰਦਰਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ EWS ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ EWS ਬਾਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਜੱਜ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫॉर ਮੇਨਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਊ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, OBC ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ EWS ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫॉर 3:2 ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਦੈਟ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਿਰਫ SC ST OBC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਟਾ ਵਾਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
जो क्राइटेरिया रखा गया फॉर एग्जांपल दैट वाज वेरी आर्बिट्ररी टू डिसाइड वंस एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल, फॉर एग्जांपल वो आर्बिट्ररी क्राइटेरिया, कोई एक क्लीयर कट क्राइटेरिया नहीं सीगा। फॉर एग्जांपल आप अधूरे कोई मापदंड रख लिया, आह मापदंड है, क्लीयर कट फॉर एग्जांपल मापदंड उन्होंने नहीं दिता, जिस करके भी प्रॉब्लम है। कहते समाज विच होर टुकड़े हो जाएंगे, समाज में होर विभाजन हो जाऊगा, उस विभाजन को रोकने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यह चीज़ ना इंप्लीमेंट की जाए। इट इज़ ओपन फॉर लैफ्ट ओपन फॉर पोलिटिकल मिसयूज। कहते अज 10% 50% जोड़ा एक दायरा रखा गया कि 50% तो वध आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, कुछ पोलिटिकल क्लास लोगों को लुभाने के लिए वो कहते 10% तुहानूं होर दिंदे हैं, कहते एक होर एजीटेशन आप कर लेने 2-4% आप रिजर्वेशन ले लाँगे। देयरफॉर यह एक नैगेटिव तरीके नाल यूज़ किया जा सकता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन में प्रीलिम्स के परसपैक्टिव तो आप फॉर एग्जांपल जो कवर किया है उस तरीके नाल मेन्स के परसपैक्टिव तो भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने दोनों की दोनों तरीके नाल एक वधिया तरीके नाल तैयारी हो सकती है इस करंट अफेयर के नाल। इस तरीके नाल ही फ्रेंड्स जो बैच चल रहा करंट अफेयर तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके नाल कराया ही जाऊगा। मेजोरिटी प्रॉब्लम्स आती है जो करंट अफेयर पंजाबी दे विच वधिया करंट अफेयर आपां नूं अवेलेबल नहीं है, उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए तुहानूं साडी एक कंपैरेटिवली एक टीम बैठी है जो पंजाबी दे विच उही चीज़ का एक सही तरीके नाल वधिया तरीके नाल एक ट्रांसलेशन की जाए ताकि सब स्टूडेंट्स को समझ आ सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिहड़े PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो पंजाबी दे विच दे रहे हैं, पर कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम सी कि हाई क्वालिटी उन्होंने कोले मटीरियल अवेलेबल नहीं सीगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इट इज़ इनिशिएटिव जो मलूका IAS वालों लिया गया कि करंट अफेयर की जिवें तुहानूं पढ़ाया गया उस तरीके करंट अफेयर करवाया जाऊगा। तो चलो एक बेसिक सीगा तां एक ओरीएंटेशन जल्दी सीगा, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके नाल डेली तुहानूं क्लासेस शाम को आप क्लासेस शुरू करांगे, एक सीरीज़ शुरू करांगे ताकि स्टूडेंट्स का वध तो वध बेनिफिट किया जा सके। नाल ही नाल करंट अफेयर तो चाहिए ही चाहिए है, प्लस वट इज़ ईवन मोर इंपॉर्टेंट इज़ कि तुहाडा GS कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाह रहा है। तो चंडीगढ़ के कल तो ही 14 तरीक तो बैच शुरू हो रहा है, बठिंडा के 21 तरीक तो फॉर एग्जांपल बैच शुरू हो रहा है, तो जल्दी होर भी बहुत सारे पॉजिटिव स्टैप्स मलूका इस पर लाए जाने। फ्रेंड्स PCS की देखो पिछले साल मैं हमेशा कहना हूँ पिछले साल के पेपर तो बाद की हालत सी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, तुहानूं भी पता तो सानूं भी पता है। जे किसी को कोई भुलेखा है तो भुलेखा बहुत जल्दी दूर हो जाऊगा। तुसीं पिछले साल दी वीडियो चक के देख लो, हैलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, ये वो हाँ तोते उड़ गए उन्होंने यार क्लीयरली कह रहा है, पता ही नहीं लग्या पेपर की हो गया। जिवें भी तुहानूं लास्ट क्लास दे विच भी कहा सी पेरेंट्स ने आके उन्होंने अगे किताबां सिट दी कि दसो जी क्वेश्चन कित्थों आएगा तुहाडे नोट्स दे विचों। अज वही लोग खड़ के कहते असीं आह बैच शुरू कर रहे हैं, आह बैच शुरू कर रहे हैं, डज नॉट मेक एनी सेंस। वट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी कमिटेड। ये पिछले साल तुहाडे पढ़ाई दे विचों आया तो इस साल भी आ जाऊगा, पिछले साल तुहानूं हवा नहीं लगी तो PCS उदों अगे मूव कर रहा है, अगली हवा भी नहीं लगनी। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी टीचिंग होंदी है, सिर्फ गल्लां मारनियां सिर्फ गल्लां मारनी होंदी है। इस दे नाल ही इस सैशन को आपां एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड जल्दी ही कॉन्टीन्यूसली एक सीरीज़ तरह करांगे ताकि अलग अलग तरीके दे नाल स्टूडेंट्स को बेनिफिट कीता जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो जल्दी तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बठिंडा ब्रांच में करना चाह रहे हैं, चंडीगढ़ ब्रांच में करना चाह रहे हैं, कितने भी वो ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।